Uh, I'm not going to retire from this format, just to make sure that no rumors are spread moving forward. Okay, guys, thank you so much. आईसीसी के 2 मेगा इवेंट जीतना अपने कंट्री के लिए किसको क्रेडिट देंगे और आज की जीत ये चैंपियंस ट्रॉफी किसको डेडिकेट करेंगे? पूरे कंट्री को, क्योंकि हमारे साथ साथ मुझे पता है कि हमारी कंट्री हमारे लिए कितना पीछे पड़े रहते हैं कि हम अच्छा करें, हम जीते। तो आई थिंक हमारे साथ साथ ये ट्रॉफ़ी पूरे कंट्री के लिए है। जब आप कोई भी टूर्नामेंट के फाइनल्स जीतते हो और स्पेशली इंडिया, हमें पता है कि हम जहाँ पर भी खेलते हैं हमें सपोर्ट अच्छा मिलता है। तो ये ऐसा ट्रॉफ़ी जीतना पूरे टीम के लोगों को इतनी खुशी मिलती है कि हमने कुछ देश के लिए किया है और करते रहेंगे आगे तक। जब जब मौका मिलेगा हम जब भी खेलते हैं कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैचेस, हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हमें मैच जीतना है। बट वो कैसे जीतना है वो प्लानिंग और उसके हिसाब से होता है। बट अगेन ये जो ट्रॉफ़ी जीती है ये पूरे देश के लिए। वी आर right up there with our skill set against that team because this is a very clinical team, New Zealand, and they understand their game really well, and they know how to play in big pressure games. So very satisfying to beat them, honestly, and to get the result in our favor. Rohit, we've used the word consistent a lot in the last sort of 15 minutes or so. How satisfied are you with the consistency in selection and the fact that the same guys are available? I think 10, 11 people who were there in the 50-over World Cup are there one and a half years later. The fact that they are able to maintain those standards and the fitness, how much does that satisfy you? No, absolutely. It's very satisfying. Look, when you have a consistent run like that, you don't need to change too many things. I have a lot of trust in the guys who we picked for the 23 World Cup and the guys who we picked here as well. Like you said, the 10 or 11 players, same players, they didn't do anything wrong in the format that they played. They got the runs, they got wickets. But again, the conditions here were slightly different, so we had to, go with more spinners than the seamers. In the World Cup, we had 3 spinners and 4 seamers and then Hardik. So that was the combination we went. But we saw how much these surfaces were used before we came here. And I knew that the slower bowler will come into play. So we wanted to pick the squad based on that. And then, again, like I said, I honestly feel for the guys who missed out on this selection for this team. But again, it was completely based on the conditions that we were going to play. Rohit, you have always maintained that in white ball cricket, you as a team you want to play a certain brand of cricket, high risk, high gain. But ये जो conditions थे exactly ideal नहीं थे, challenges थे. But इस challenges को भी जिस तरीके से आप लड़कों ने जिस तरीके से overcome किया, इसके बारे में क्या बताएंगे? जैसे न्यूजीलैंड के एक मैच में 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, मिडिल ऑर्डर वहाँ से रिकवर करता है. थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. नहीं, मैं इस चीज़ का काफ़ी मुझे प्राउड फीलिंग है टीम के ऊपर, क्योंकि हमें पता था कि कंडीशंस डिफ़िकल्ट होंगे, बट हमने काफ़ी अच्छा अडेप्ट किया. अगर आप देखो ऑल द गेम्स, मतलब पहला गेम भी बांग्लादेश के सामने, आई नो इट वाज ओनली 230, बट हमें पता था कि विकेट थोड़ा सा स्लो है, पार्टनरशिप्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो बैट्समैनों ने बड़े पार्टनरशिप्स किए. Not to forget the silent hero Shreyas Iyer throughout the tournament was brilliant. He was very important in that middle phase for us. Stitched the partnerships with all the batters who were batting with him. That semi-final against Australia with him, with him and Virat at that point was very important. And even against Pakistan and New Zealand. The league game that we played. जब मैं आउट हो गया हमारे 3 विकेट गिर चुके थे और उस टाइम पे अगेन हमको एक 50 से 70 रन की पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, जो इन दोनों ने अक्सर और श्रेयस ने किया. तो ऐसा जब परफॉर्मेंसेस होता है, जब आप कंडीशन समझते हो और कंडीशंस को जल्दी से जल्दी अडेप्ट करते हो, तो अच्छा फीलिंग होता है. तो इसीलिए मेरा काम
जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि लड़कों को समझ है कि क्या करना है बीच में जाके। और एंड नॉट टू फॉरगेट, हम बात कर रहे हैं बैटिंग की, बट ऐसे विकेट पे बॉलरों को भी 250 के नीचे रखना, टीमों को 250 के नीचे रखना, 240 के नीचे रखना भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है, क्योंकि हम मन में ये बना लेते हैं कि नहीं विकेट तो स्पिनरों को हेल्प कर रहा है, बट ऐसा आपने देखा होगा कि कोई 5 मैच में कोई बॉल ऐसे घुमा नहीं है कि हर बार हर ओवर में बॉल घूम रहा है। एक आधा बॉल बीच में कभी घूमता है, बट दैट इज़ द चैलेंज दैट यू आर फेसिंग एज अ बैटर, कि जो घूमने वाला बॉल है उसके लिए आपको रेडी नहीं रहना है। जो सीधा बॉल आ रहा है, जो कि 100 में से 80% है या 70% है, आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो आई थिंक दैट इज़ द एडेप्शन, एंड दैट इज़ व्हाट दीज गाइज हैव शोन इन द मिडल, दैट दिस इज हाउ वी वांट टू अडेप्ट एंड प्ले आवर गेम। क्लास 11 पूरी तरह से बर्बाद